Bismillahirrahmanirrahim. I am Jamila Rani, working as assistant professor at Government Girls Degree College, Shahdadpur. My subject is zoology. Today I have to discuss about enzyme. First of all, the definition is concerned. Enzymes are protein molecule. We can define as they are biological catalyst. And biological catalyst means they speed up chemical reaction but remain unchanged at the end. Or we can say that enzymes, as far as the properties of enzymes are concerned, we can say that enzymes are globular protein. They increase reaction rate. They do not alter the properties of the end product from the reaction. There are very small amount of enzyme which can affect the change of a large amount. Activity is affected by temperature, substrate and enzyme concentration. It is specific for particular reaction. And virtually every metabolic reaction which takes place within a living organism is catalyzed by an enzyme. Okay, now question arises that why there is need to discuss enzyme. As you know, we are the students of science. As the word science means to know, there are questions. So first of all, being student of science and at the time being a teacher, I can say that life is based on chemicals, and some of all the chemical reactions which going on in cell is known as metabolism, right? Metabolism means biochemical reactions. These biochemical reactions takes place inside the body. There are two types of reactions: anabolism and catabolism. Anabolism means assimilation of large molecule, as far as catabolism means the breakdown of large molecules, right? As far as anabolism, for example, synthesis of protein, synthesis of polysaccharides, we can say, okay. And as far as catabolism, it means breakdown of large molecule. For example, breakdown of protein. So we can say that these are opposite reactions. In anabolism, there is synthesis. There is synthesis of large molecule, right? And in catabolism, it is opposite to anabolism because there is breakdown of large molecule. For example, protein, which is made up of amino acids. A large number of amino acids, when they combine together, they will form a protein molecule. So we can say that amino acid is a monomer and the protein is polymer. Now, question arises, where are enzymes? अगर हम ये सब कह रहे हैं, हम कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है, तो हम डेफिनेटली क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एंजाइम्स का रोल यहाँ पर कहाँ है. हम क्यों इतने एम्फेसाइज कर रहे हैं एंजाइम्स के एक्शन पर. तो सिंपली ये केमिकल रिएक्शंस जो इनसाइड द बॉडी हैं, जिनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, जिनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो देयर इज़ अ चेन ऑफ reactions which are going on in cell, right? And at the same time different metabolic pathways are going on in the cell, and these reactions takes place very quickly in the cell. Now why, how, ये कैसे पॉसिबल है भाई कि रिएक्शंस हो रहे हैं, फास्टली हो रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रही है, फ़ौरन ही ये हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है, हीमोग्लोबिन बनाती है, पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है.
ये कैसे पॉसिबल है कि आप खाना खा रहे हैं, डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है और डाइजेशन के प्रोसेस में आपको एनर्जी मिल रही है। हमारी बॉडी में तो बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ जो कुछ भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं ये डिपेंडेंट है एंजाइम्स पर, क्योंकि एंजाइम्स वर्क एज कैटलिस्ट, राइट। एंड कैटलिस्ट की मीनिंग अगर आप देखें तो वर्ड कैटलिस्ट मीन्स those chemicals which speed up the reactions but remain unchanged at the end, कि ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप ज़रूर करेंगे लेकिन ख़ुद ये अनचेंज रहेंगे, राइट। डेफिनेटली अगर हम ये बात कहते हैं कि स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस, राइट। अब क्वेश्चन फिर अराइज होता है, अगेन वी आर स्टूडेंट ऑफ साइंस, देयर मस्ट बी क्वेश्चन इन आवर माइंड, हमारे जहन में क्वेश्चन होगा तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो लर्निंग है वो भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, एंजाइम्स कैटलिस्ट के तौर पे वर्क करते हैं, ओके, दे स्पीड अप द रिएक्शन, बट व्हाई देयर इज़ नीड। तो इसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, राइट। और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो टूटते भी हैं अपने रिएक्टेंट्स में बॉन्ड्स, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स में और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है इनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो रिएक्टेंट्स जो हैं उनको दे मस्ट कंटेन सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, सही है। अब काइनेटिक एनर्जी उनको चाहिए ताकि वो ओवरकम करें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। आई एम फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज दिस इज़ द मेन important function of enzyme. It lowers down the activation of energy. Now again question arises, why there is need? एंजाइम को क्यों ज़रूरत पेश आती है कि वो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को लोअर डाउन करें? तो उसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स भी हैं और एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स भी हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स और एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स इन दोनों को कंबाइन करते हैं, इन पर रिएक्ट करते हैं और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दिस इज़ द मेन पॉइंट, राइट। अगर ये एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी कम होगी तो फिर ये पार्टिसिपेट करेगी। अब आप खुद सोचें कि अगर बॉडी में दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स भी हैं, एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो अंडरस्टूड बात है जो एनर्जी लोअर मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास बहुत कम एनर्जी है, वो वर्क नहीं कर सकते, और जिनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो बैरियर के तौर पे वर्क करेगी एनर्जी। हम इसीलिए कहते हैं कि एंजाइम रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करेंगे तो रिएक्शन होगा, तो ही तभी हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। तो अगर एंजाइम रिड्यूस करते हैं तो वो किस तरह से एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स, इनको कंबाइन किया, इनको इंटरमीडिएट बनाया, फिर फाइनली इन्होंने प्रोडक्ट बना लिया, राइट। It represents enzyme. When enzyme combined with substrate represented by S. When enzyme combined with substrate, there will be form enzyme substrate complex. Finally, the product will be enzyme leave the product and it will remain unchanged. And the second diagram, it's a diagrammatic representation or illustration. There is enzyme, and in this diagram you can easily see there is active site. Active site means it's a particular site for the attachment or
substrate will attach at this particular site, which is called as active site. Enzyme substrate complex will be formed, and finally enzyme convert the substrate into product and leave the substrate, right? It is very simplified diagram of enzyme function. Next diagram, it's a graph that's showing that whenever we are saying that enzyme reduce activation energy को एंजाइम रिड्यूस करते हैं, क्योंकि हम इनिशियली यही बात कह रहे हैं कि एंजाइम्स आर कैटलिस्ट, मीन्स दे हैव टू स्पीड अप द रिएक्शन. स्पीड अप कैसे? आप किसी रोड पर जा रहे हो और अगर रोड पे कोई बहुत बड़ी रुकावट खड़ी हो, आपकी स्पीड डेफिनेटली स्लो हो जाएगी. आपकी स्पीड कब बढ़ेगी? जब आप उस रुकावट को हटाएंगे, राइट? तो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी जो बहुत हाई एनर्जी है, इट एक्ट एज अ बैरियर. एंजाइम को उसको लोअर डाउन करना है. अभी जो फर्स्ट ये जो आप देख रहे हैं इसमें सबस्ट्रेट है, राइट? एक्टिवेशन एनर्जी इसमें इतनी ज़्यादा इसकी नीडेड है कि जब कोई भी सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, राइट? तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो मतलब एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी जो है वो उसके लिए नीडेड है. क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है, मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनको कुछ एनर्जी चाहिए, राइट? एनर्जी मस्ट बी नीडेड, राइट? अब हम अगर हम फंक्शन देखते हैं, अगर हम वर्क देखते हैं, हम नॉन लिविंग सिस्टम और लिविंग सिस्टम को कंपेयर करते हैं, तो नॉन लिविंग सिस्टम में हीट को यूज़ किया जाता है एज अ एनर्जी. हीट यूज़ होगी एज अ एनर्जी और वो एक्टिवेट करेगी. किस चीज़ को करेगी? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तब रिएक्शन हो जाएगा. लेकिन लिविंग सिस्टम में अगर हम ये कहें कि हीट वो काम नहीं कर सकती, हीट यू कांट यूज़ द हीट एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, हीट को आप यूज़ नहीं कर सकते. वाई? व्हाट्स द क्वेश्चन, राइट? इसका आंसर ये है कि नियरली, जैसे मैंने पहले कहा कि मैनी पाथवेज एट द सेम टाइम्स आर गोइंग ऑन इन लिविंग सिस्टम, राइट? तो नियरली 1000 केमिकल रिएक्शंस जो हैं एक सेल में हो रहे हैं एट एनी टाइम. इतने ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ये जो लार्ज नंबर है रिएक्शंस के, इनके लिए एनर्जीवेशन ऑफ एक्टिवेशन जो है वो लिविंग सिस्टम ख़ुद प्रोवाइड नहीं कर सकता. लिविंग सिस्टम इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता कि इतने ज़्यादा जो रिएक्शंस हैं वो ख़ुद ब खुद हों. तो इस वजह से फिर एंजाइम जो है वो अपना वर्क करेंगे, राइट? अब इसमें हम ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें भी अगर आप देखें तो आपको क्लियरली ये चीज़ नज़र आएगी कि एंजाइम जो है वर्क, अगर आप रिएक्शन देख रहे हैं कि विदाउट एंजाइम, राइट, और विद एंजाइम, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी जो है. अब इस डायग्राम में अगर आप देखें तो एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है. सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट मींस के देयर इज़ केमिकल रिएक्शन. और हम अगर लिविंग सिस्टम की बात करें दैट मीन्स इट्स अ बायोकेमिकल रिएक्शन. तो सबस्ट्रेट जो है वो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस में ये जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्शन की प्रोग्रेस होगी, तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी यूज़ होगी. तो ये जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेगा एंजाइम के एक्टिव साइट पर. जब एंजाइम के एक्टिव साइट पर वो बाइंड करेगा तो शेप जो है मॉलिक्यूल की वो स्लाइटली चेंज हो जाएगी, राइट? इसीलिए हम कहते हैं कि देयर आर फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट. तो इसकी वजह से ये ईजियर है टू चेंज इनटू प्रोडक्ट और एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लोअर हो जाएगी. आज हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है एंजाइम को. एंजाइम्स के जो मेन इसका काम है, जो इसकी जो डेफिनेशन है कि एंजाइम वर्क एज अ कैटलिस्ट, आज हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है. इंशाल्लाह वी विल बी कंटिन्यू द चैप्टर इंशाल्लाह ताला, और इट विल बी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स विच आर ट्राइंग फॉर प्री एंट्री टेस्ट. इंशाल्लाह ताला विश यू बेस्ट ऑफ लक.